save instances is used in portrait mode and restore instances is used in landscape mode. And in save instances, we use this method to save the score for the game which we have played. And restore instances means after closing the game and if we reopen, the score should be same. For that we use resourced instance state. Guys, get you getting understood? We have seen the activity life cycle. When the any configuration state, we have seen the activity life cycle, that is on create, on start, on resume, on pause, on stop, on destroy, right? Whenever we change, for example, first I was playing the game in the portrait mode, and after some time I want to change the game into the landscape mode. I want to play in landscape mode. So for that changing, if I change from portrait to landscape mode, it should not change my score in the game. When I play from 500, if it is in portrait it is 500, in landscape also it should be a 500. For that we use these instances. Getting? Yes, ma'am. Okay. Now create a one button. I Yes. think it. Type width and height for it. Just type width, it will automatically come. I think there is a flaw. It is not yet loading it. Ma'am. Sir, your voice is slow. Can you It is not yet loading. layout with? You Android slash colon layout underscore with will come. Wrap content. For height also. Don't type Android, just type height. It automatically gives you the options available for the height. Then pass and then give the ID for it button. Give the text for it. Then give the constraints. Give the ID at the rate ID. It gives option button. Then give the constraint, start to start, end to end, bottom to bottom. Yes, give the text. Also give the text also. Why the options are not coming? It is loading it. It starts loading. It is not finished loading, ma'am. Okay. I don't know why it takes this much time. Give the constraint.
layout constraint bottom underscore bottom to bottom of. Shall we need these four? What, sir? Shall we need all these bottom to bottom, Yes, left to yes, left? yes, yes, yes. You can copy that. Yeah. Same thing. Okay, fine. Then what are the other options you will give? That is, give the input type, text parameter. No, no, wait, wait, wait. Just okay. Then create a edit text view. Cancel the text view which we are above you have created. Just upper option, that is text view now. Yes, ma'am. Cancel the text and replace. Don't erase full thing. Above text view it is written no. Yeah, Yes, edit ma'am. that thing. It automatically gives you. Um, Okay, wrap content. Give the ID for text view also. Give ID. Give the input type. I think your net issue is coming. yes, ma'am. I don't know why. Can share anyone who is connected with PC? Anyone connected with PC? Kaushik sir, Ganesh sir, are you connected with PC? Anyone? Ma'am, I have a power problem. What sir? I have a power issue, ma'am. Okay. So my PC is no battery backup, ma'am. For input type, just type Android colon input type is equal to double quotes text parameter. Text Input. parameter. Okay. Input type text parameter. And next is Android colon save enable is equal to false. What, ma'am? Save enable. SAVE. Does it need an underscore there? No. E is capital. No underscore, just enable E is capital. Okay, ma'am. And give the value enabled. Okay, D will come. And give the value false. Value means true. False. Is it right, ma'am?
Now show in design part. Split the screen. It is visible or it It is is coming any loading, error? ma'am. It's loading, so only causes some error. Shall I try with the new project, ma'am? Because it is loading. Yes, just copy the code and paste in the new project. Yes, ma'am. The error with this button. Yes, sir. So your screen is visible. Now run the code. Press running. Just move to the design part Ma'am, I think there will be error with the in button part. ID. Okay, at the rate ID, ID ma'am. Android colon first option. Just pass the ID. Yes. Text view option is not coming for the text view. Search. Ma'am, does it edit text or something else, ma'am? Edit text. Yes, but it is not coming there. Make your screen with high text ID. Input type text when text parameter underscore is when text parameter underscore is not coming.
capital. 1 second, ma'am. I'm text parameter or something else. Uh, Take personal name. There's nothing else. Some text parameter here, ma'am. What, ma'am? Text personal. Personally, okay. Coming. Text person name. TXT. Shall I? Ma'am, I think your voice is breaking. I think the text is... Now clear. Yes, ma'am. Now move to activity main.java actual file or top constraint bottom horizontal. XML file. Can you open once again XML file? Yes, ma'am. Bottom. Cancel horizontal. Horizontal bias. Vertical bias. Android I. What, ma'am? Okay, type Android EMS in edit text. EMS. Colon. Yes. Enter. Put the value 10. What, ma'am? 10, 10. I'm not get you, ma'am. 10, 10, value 1, 0. Okay, ma'am. Okay. Now move to Java file. Activity main.java. Just run the file. Can you run the file? Yes, ma'am. If you run this file and which file is running? Ma'am, it is running. It is not get finished. Okay. If you It's run building, ma'am. this file
It will give you a button and the edit text view. If you type the text view and change the orientation, the data will be clear. By changing the orientation, if you type any text or edit or text, it will change. It will clear the data only. Yes. Something here. Yes, ma'am. This orient- What shall I do now, ma'am? Hello, ma'am. Ma'am. Hello. Yes, ma'am. Is it clearing the No. data text edit text? Yes, ma'am. I can clear. Type hello world and just change the orientation after that. From a landscape portrait. Yes, it gives you the change, right? You first have written hello and after changing that, and hello world is a by default text. If you if in the code, if you clear that text that is hello world, move to the code, XML code. Okay, ma'am. Okay, type cd and change the orientation. It gives you the code, right? Yes, ma'am. Okay. Minimize that thing. Yeah. Yes, it is changed, ma'am. So change to default. Yes. Why default? Because I have not that CDE. For saving the CDE, we have to use the restore file, that is save instance file method. Move to xml.java file for that. Java file, ma'am. Yes, Java file. Yes, ma'am. Okay, in Java file public main activity. See here, the save instances file is by defaultly created, right? Bundle save instances file on create. Yes, ma'am. Okay, in this file we will pass a counter. What means counter? If we are changing, that is counter 1, 2, 3, 4 for till 5, that is 1, 2, 3, 4, 5 till 5, I have to, it is in portrait mode and my counter is 5 for 5 pages. If I change the orientation from 6th page, it should come, my counter should be 6, 7, 8. It should be continue, not from 1, 2, 3, right? For that thing we use save in. For this also we will saving. Ma'am, your voice is breaking now. That CDE in now create a button after super class, that is super content, and that is, it will be after layout that view, it will be okay. Before closing the braces, two braces above.
Yes, click on enter and create a button. Type button, capital D. For a button, for passing a button, we will type capital D. And for now, we will set a variable. What we will set, that is type what you have typed, btn you have stored, na? Yes, ma'am. As ID BTN. Okay. Type btn equals to, in bracket, round bracket, equals to, round bracket, type one more, type button, capital B. After that, find view by ID. Type just after closing the curly braces. No, after curly braces. Round bracket. Sorry. Just type find view by ID. Automatically appears. What you will type in here, r.id.btn. There will be mistake with the ID, I think so. r.id. Capital R. Don't write at the rate. Bro, it's r.id, bro. r.id. Type btn. Put semicolon. What we have just created here, we have created a button name, that is btn, and we have passed the ID which we have created in button in XML file. Guys, are you getting the code what I am explaining? Yes, ma'am. Now we will set on click listener, that is type button btn dot set on click listener. Open the round bracket. Once Yes, again ma'am. open the round bracket. Once again open the round bracket. Two times. Yeah. Type V. B. After the open the curly braces after that. After what? Oh, After the round bracket. Both the round bracket. No, in that only just type V and come outside. No round curly braces will come in that. Now the next line. here. After semicolon. Yes. Don't come semicolon, just open the round bracket. Yes, ma'am. That's it fine, ma'am? Edit text. Type yes. We have created. Type edit. Click enter. Ma'am, your voice is breaking.
मैम। मैम। हेलो मैम। Guys, till here, anyone has doubt in today's session? No मैम। We will continue tomorrow because another session for Hindi is also there. Okay? ओके मैम। Thank you. You can all leave. Thank you, ma'am. Have a nice. थैंक यू मैम। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल। अच्छा, कोई और आने वाला है या स्टार्ट करें? थोड़ा वेट कर लेते हैं, चलो ठीक है। हेलो, कोई नहीं आ रहा है क्या?
हेलो हेलो। आ रहे हैं आ रहे हैं। हेलो। अरे मुझे एक बात बताओगे आप लोग? हेलो हेलो। Yes, sir. कोई यस है सर। क्लास में या सो गए? हाँ मैं ये पूछ यस रहा सर। हूँ, आप में से मुझे कोई बताएगा कि आप में से किसी ने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया है क्या टेक्नोविजन का? सर शेयर किया था हाँ। कॉलेज ग्रुप में। शेयर किया था कॉलेज ग्रुप में। ओके। कुछ रेस्पॉन्स वगैरह कुछ डिटेल्स पूछा है आपसे? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। डेट्स वगैरह के रिगार्डिंग पता है आपको? डेट्स क्या है इवेंट की? 13-14 मैंने पढ़ा था शायद। हाँ बिल्कुल वही डेट्स हैं। तो अगर जो आपको कंटेंट मिला है अगर उसमें डेट मेंशन नहीं होगी तो शायद सभी ने इग्नोर कर दिया होगा उसको। तो एक बार आप लोग इस चीज़ का कंफर्मेशन कर दीजिएगा उनको कि आप जहाँ पे भी शेयर कर रहे हो उसको, ठीक है, शेयर कर रहे हो या फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो नॉर्मली, उसको बोल दीजिएगा काफ़ी अच्छा इवेंट है, ठीक है, और 13-14 को ही ये हो रहा है। और रजिस्ट्रेशन डेट जो है लास्ट 11 है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ हो जाएंगे। सर ठीक है 10th गाइस, है। तो प्लीज़ आप 10 मैम तक registration 11 date है। तक कर सकते हैं अभी। ओके। हाँ मैम 10 तक था बट अभी 11 तक कर सकते हैं ऐसा। ओके सर। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ जल्दी कर दीजिएगा इस चीज़ को थोड़ा, है ना। और अपन कल क्या पढ़ रहे थे एहसान सर? हेलो एहसान सर। हेलो एहसान खान सर। वॉइस आ रही है मेरी? हेलो हेलो। यार आप लोग रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? इच्छा नहीं है क्या पढ़ने की? इच्छा नहीं हो तो रहने देते हैं अपन, कोई इशू नहीं है। हैं बताओ यार, किसी को डांटने वाला थोड़ी ना हूं मैं। तुम इतना क्यों खौफ में जी रहे हो यार? खौफ में नहीं जीना है अपने को, बिल्कुल निडर होके जीना है। ठीक है बोलो यार। हेलो। यस सर। Yes, sir. हाँ बोलना होता है मैम। अच्छे से। विशाल सर कहाँ गए? सॉरी, हाँ विशाल सर है क्या यहाँ पे? सर सैटरडे को सर डाउट दे विशाल रहे थे आप। नहीं। नहीं डाउट्स तो थे बट उसके बाद मैंने कुछ बताया भी तो था, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड पे नहीं बताया था क्या? एहसान खान सर तो थे वहाँ पे, मेरे को पता है, लास्ट तक वही रुके थे।
ये लो लेफ्टी कर दिए तो ना डर गए। अरे डरने का क्या है इसमें, मुझे ये सर बताओ। नेटवर्क इशू होगा। हेलो सर। हाँ शायद हो सर सकता वॉइस आ रही है? है। हाँ सर, यस सर। बिल्कुल आ रही है आपकी वॉइस। हाँ बताइए क्या पढ़ा था अपन ने सैटरडे को, कुछ पढ़ा था ना लास्ट में, छोटा सा टॉपिक। हाँ सर, लैंडस्केप का किया था। हाँ तो आपने ट्राई किया था उस चीज को। सर नहीं सर, ट्राई नहीं किया था। ओके ट्राई नहीं किया, अगर आप मैं बोलूँ आप यहाँ पे एक्सप्लेन करो सबके सामने तो आप कर सकते हो। सर एक बार देखना पड़ेगा। बिल्कुल आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देख देख करके भी बताओगे तो भी चलेगा। जहाँ गलती होगी मैं आपकी हेल्प करूंगा वहाँ पे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो एक्चुअली वो मेरे लैपटॉप में नहीं किया था, मतलब मेरे सिस्टम में नहीं किया था। कोई नहीं, आपको थोड़ा आइडिया तो होगा ना कि ऐसे ऐसा किया था, कुछ तो याद रहा होगा, नहीं रहा था। एक्सक्यूज मी सर। यस मैम। सर वो नीलम को अलाउ कर दीजिए ज्वाइन करने के लिए, वो वेट कर रही है, उसको कोई अलाउ नहीं कर रहा है। ओके अर्चिता मैम, देखिएगा कोई वेट कर रहा है क्या क्लास में, अलाउ कीजिए प्लीज। वेट अ मिनट गाइस। हेलो गाइस, आ गए हैं या यस फिर सर। कोई और वेट कर रहा है? दिव्यांश मैम। यस सर आ गई। हेलो। ओके कोई और तो नहीं है ना? चलो। हाँ तो मुझे बता, ऐसा आंसर आप नहीं बता सकते क्या पूरा प्रैक्टिकल करके, मतलब थोड़ा थोड़ा भी आइडिया हो। सर एक बार देखना पड़ेगा मुझे, ऐसे नहीं हो पाएगा। ओके विशाल सर भी थे ना, विशाल सर। सर लीव कर दो। तो मुझे लगा डाउट ले रहे हैं तो मैं कौन लीव बता कर सकता दूँ। हम्म, कौन 45। बता सकता है, कौन बता सकता है? सर लैंडस्केप मोड में कंस्ट्रेंट लेआउट पढ़ाया था सर आपने। अरे सर वो पढ़ाया नहीं था मैंने, आगे भी पढ़ा दिया था काफी ज्यादा। मैंने वैल्यू का भी बताया था थोड़ा। अब वो किसको पता है, जो क्लास तक एंड तक रुका था ना उसी को पता है केवल। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग में मतलब बोलने की वो जो होती है ना कैपेसिटी, मतलब 100 लोगों के सामने एक साथ बोल सके अपन, वैसी कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर। उस कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करना है अपने को। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जो दो इंटर्न्स थे लास्ट तक, उन दोनों में से कौन है, एक तो एहसान खान सर थे, दूसरा कौन था जो मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकता है? कोई है क्या? मैं ही मेरे को ही बताना है वापस।
यार ऐसे मत किया करो यार, एटलीस्ट थोड़ी हेल्प किया करो मेरी भी यार थोड़ी सी। ठीक है, कौन शेयर करेगा स्क्रीन? शेयर करो, जो शेयर कर सकता हो। ज़्यादा डिले नहीं कर सकते अपन। सर मेरे मैम हाँ बता दीजिए, आपकी वॉइस थोड़ी कट कट के आ रही है, पर आप बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है, लिख दीजिएगा। प्रॉब्लम ज़्यादा यस लंबी होगी सर। तो अपन बाद में सॉल्व करेंगे, छोटी होगी तो अभी सॉल्व कर देंगे। नहीं सर, बस इतना सा इशू आ रहा है, वो हाँ हाँ वो प्रॉपर आ रहा है। वो वो मैंने बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, आपने मैसेज किया था, मैंने देखा भी है आपकी प्रॉब्लम को। आप बोल रहे हो कि मेरा एमुलेटर पे जो मतलब यूआई है लैंडस्केप मोड पे काफ़ी सही चल रहा है, बट जब मैं डिवाइस में उसको लैंडस्केप मोड मतलब चला रही हूँ लैंडस्केप मोड पे, तो वो हाफ विंडो के अंदर ही आ रहा है, आधी स्क्रीन पे ही शो हो रहा है, राइट? यस। हाँ मैंने पढ़ लिया था। वो थोड़ी सी आपकी थोड़ी सी गलती है, तो उस गलती को मैं सुधार दूंगा, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। आपने है ना वो मतलब जितना स्टार्टिंग से एंड का मतलब जो भी कंस्ट्रेंट का आपने रेडी किया, मेरे को पूरा कोड लिखना पड़ेगा आपका, उसके लिए जो आपने कोडिंग किया है वो कोड मुझे देखना पड़ेगा, उसी के बाद मैं बता पाऊंगा पूरा अच्छे से, और पूरा लेआउट में अच्छे से रेडी सर करवा दूंगा, है ना? तो पहली चीज तो मैम पहले तो आप अपने नेटवर्क का इशू सही कीजिए, बहुत वॉइस ब्रेक होता है आपको। आपने फाइल तो शायद अपलोड कर दी थी शायद, आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है। नहीं की थी आपने? हाँ अपलोड की है आपने, बिल्कुल। ओके, लैंडस्केप मोड पे आपने चलाया, एमुलेटर पे तो सही चल रहा था, लेकिन मोबाइल डिवाइस में सही नहीं चला। हेलो गाइस, देखो आप लोगों के असाइनमेंट्स मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अच्छे से। आपने मुझे दिव्यांशी मैम का काम काफी सही लगा अभी तक का, तो दिव्यांशी मैम का काम काफी सही लगा। ये मतलब जो आपको लेआउट बोले एग्जैक्ट वैसा लेआउट आप बना रहे हो, बट उसमें सर आपकी हाँ, ये आवाज कट हेलो, गई बीच में, समझ कट में रही नहीं है, आया आपने क्या बोला। बीच में कट के। हाँ सर। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ कि मैं बोल दिव्यांशी में आपका वर्क काफी सही है, काम करने का तरीका बहुत सही है, ठीक है? आपको जैसा बोला गया आपने बिल्कुल वैसा बना दिया है, इसमें नो डाउट कोई शक करने वाली कोई बात नहीं है उसमें, ठीक है? बट ना आपने जो सेकंड लेआउट बनाया है ना, उसमें भी आपने को अपना माइंड लगाना है, बेसिकली अपना माइंड लगा करके फिर वर्क करना है। सर वो आपने जैसे भेजा था इसलिए ऐसा वैसे बना दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस चीज की मना कर ही नहीं रहा हूँ, मैं उस चीज की तो तारीफ कर रहा हूँ। आपने जैसा बनाया वो काफी काबिल तारीफ था, मैंने लिखा भी है, आप कमेंट भी किया है परफेक्ट, और थम सबका साइन भी दिया है, मैंने दिया है या नहीं दिया है, मिला है आपको?
यस सर, थैंक यू सर। बिल्कुल, मैं बोल तो रहा हूँ आपका काम सही है, जिसका काम बहुत ही बेटर और तारीफ करने वाला है उसकी तारीफ तो बनती ही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने अच्छा काम नहीं किया है, ठीक है, आप लोगों ने भी अच्छा काम किया है, बट आप लोगों से थोड़ा अच्छा काम दिव्यांशी मैम ने किया है और आप लोगों का भी अच्छा है। मैंने कुछ इंटर्न्स को ये भी बोला है कि परफेक्ट है, बट फिर भी ट्राई अगेन वहाँ पे लिखा है। आप सभी को कमेंट्स भी मिले होंगे वहाँ पे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है, दिव्यांशी मैम का वर्क। सी, मुझे बिल्कुल परफेक्ट लेआउट नहीं चाहिए था, ठीक है, बट हाँ जो कंडीशंस रिक्वायरमेंट जो थी वो दिव्यांशी मैम ने पूरी तरीके से फुलफिल की है अच्छे से। देख लो, मतलब डिस्क्रिप्शन भी है, आइकन में जो सी कैरेक्टर था वो बिल्कुल सेंटर में भी आ रखा है, सर्कल भी बनाया हुआ है और साइबर सिक्योरिटी वगैरह, मतलब जो सभी चीज़ उन्होंने अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश की है, परफेक्ट था उनका, ठीक है, पूरा परफेक्ट था। और लैंडस्केप मोड भी आप देख सकते हो, काफ़ी सही बन रहा था उनका, मतलब ज़्यादा उनका मतलब ऐसा नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा हो, काफ़ी सही था देखने में। अब आप में से कुछ इंटर्न्स ऐसे भी बोलेंगे कि हमारा भी तो सही था सर, राइट, एब्सोल्युटली राइट, आप लोगों का भी सही था। ये वाला लेआउट देना है मुझे। ये आपका लैंडस्केप मोड पे नहीं था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, क्लिक किया, ये देखो सर, मतलब एहसान सर आपका जो वर्क था वो काफ़ी अच्छा है, बट परफेक्ट नहीं बोल सकते इस चीज़ को अपन यार, इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हाँ लिख सर, पा रहा। इसका प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, काम आपका सही था बट इतना परफेक्ट नहीं बोल सकते अपन, ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको भी कमेंट किया है ड्रैगन लैंडस्केप मोड के लिए, ठीक है, सभी को मैंने मतलब लगभग लगभग सभी को कमेंट किया है, ऐसा नहीं है किसी को नहीं किया हो। नीलम मैम, इनको 100 मार्क्स तो मैंने साइन किए हैं, यस सर। ठीक है, और आपको भी मैंने यही बोला है कि एक मिनट गाइस, देखा आप लोगों ने काम देखा, मतलब नीलम मैम का भी वर्क मैं दिखाता हूँ, ये नीलम मैम का वर्क था, ठीक है, और ये सेकंड टास्क नीलम मैम का। ये देखो नीलम मैम आपका लेआउट देखो, यहाँ से मतलब ऐसा लग रहा है सर्कल बना रहा हो, इस दिख रहा है नीलम मैम आपको? यस सर। ऐसा लग रहा है बिल्कुल सर्कल बना रहा हो। आप तो शायद पहले से एंड्रॉइड पे काम कर चुकी हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाए आपने, ठीक है, तो सर आपसे मैं मुझे और दिव्यांशी क्लासमेट है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, आप दोनों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए मैंने आपको बोला कि और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों की। देखो अभी ना
आपने क्या करा, देखो मैं बोलता हूँ परफेक्ट लेआउट। अभी आपको ना, आपको जब भी क्लाइंट के साथ में जब भी काम करोगे ना आप लोग, तो क्लाइंट आपको केवल फील्ड्स के नाम बताएगा और आपको उसका लेआउट अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना होता है। ठीक है, जब भी आप किसी भी कंपनी में वर्क करते हो तो क्लाइंट्स आपको ना ऐसा नहीं, वो लेआउट नहीं बोलता कि आपको यहाँ पे ये चीज रखनी है, वहां पे वो चीज रखनी है। वो तो केवल इतना सा बोलता है कि आपको एक मुझे नेम चाहिए कंपनी का, एक लोकेशन चाहिए और एक ये चाहिए, एक वो चाहिए, तो सारी चीज डिटेल्स वो दे देगा। फिर आपको चेक करना है कि यार डिटेल्स जो है वो मैं एक पेज पे पूरी दिखा सकता हूँ या नहीं दिखा सकता। अगर नहीं दिखा सकता तो मेरे पास और क्या ऑप्शंस हैं, है ना। अगर मैं एक्सपेंडेबल लेआउट का यूज लेता हूँ तो शायद उसमें मेरी पूरी डिटेल्स भी आ जाएंगी और ज्यादा डिटेल्स भी आ जाएंगी। जैसे मेरे पास कंपनी की डिटेल्स थी तो मेरे को सारी डिटेल्स दिखानी थी। अब मैं सारी डिटेल्स दिखाता तो मेरा यूजर उसमें परेशान हो जाता बिल्कुल कि यार कितनी डिटेल्स है, क्योंकि कंपनियां क्या करती है, बहुत बहुत सारी डिटेल्स डालती हैं, राइट। तो फिर मैंने वहां पे एक्सपेंडेबल का यूज लिया। एक्सपेंडेबल का यूज इसलिए लिया कि भाई इंटर्न जाएगा, उसको पसंद आएगा कि भाई हाँ ये लोकेशन मेरे को मिल गई है, ठीक है, और मेरे मेरे काम की जॉब है यहाँ पे, लोकेशन भी अच्छी है। देन वो उसकी डिटेल्स को चेक करेगा, एक्सपेंड करेगा अपनी डिटेल्स को चेक करने के लिए, फिर देन वो अप्लाई कर सकता है। तो उसको इस तरीके से आपको लेआउट बनाना होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ लेआउट आपने बनाया बिल्कुल परफेक्ट बनाया, बट ये जो आपने दिया है यहाँ पे स्किल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ओपनिंग्स, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ना, जैसे आपने सैलरी और डेट्स का देखो, डेट्स बिल्कुल सेंटर में आ गई है ना, डेट बिल्कुल सेंटर में आ गई आपकी, जबकि डेट सेंटर में नहीं होनी चाहिए, है ना। और सैलरी और इसके बीच में कितना स्पेस आ रहा है, ऐसा लेआउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं एक परफेक्ट लेआउट बनाने की कोशिश करो आप लोग। ओके सर। ठीक है, और मैं जैसे कि अभी ये पूरा देखो, ये पूरा हिस्सा पूरा खाली है ऊपर का। चाहते ना अपन तो रिक्वायर्ड को इधर साइड में भी डाल सकते हैं अपन, इसके साथ में भी डाल सकते साइड में बिल्कुल, ठीक है, वो भी ट्राई कर सकते थे, क्योंकि इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, ज्यादा थोड़ी बहुत होती है, तो नीचे डाल दिया, वेल एंड गुड है वैसे तो। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप ट्राई करो और भी अच्छा लेआउट बनाने, मतलब काफी अच्छा, मतलब अपने अकॉर्डिंग लेआउट बनाओ। लेआउट ऐसा नहीं है कि भाई सर ने जैसा बोला वैसा बिल्कुल बनाना है, बना दिया वेल गुड है, बट उसके लिए ना और भी प्रैक्टिस करो अपने को लेआउट में। सर की रिक्वायरमेंट क्या होती है बताऊं, मेरी रिक्वायरमेंट इतनी सी होती है कि हाँ मेरा जो इंटर्न है ना, वो मैं जो बोल रहा हूँ ना सर्कल बनाने का, तो सर्कल बनाना सीख जाए, ठीक है। उसको एक्सटर्नल लाइब्रेरी की जितनी कम यूज करना पड़े उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि उससे आपकी एप्लीकेशन का साइज जो है बहुत छोटा होता है। अगर एक्सटर्नल लाइब्रेरी ज्यादा यूज होगे तो उसकी भी तो साइज कंज्यूम होगी ना, वहाँ पे उसकी भी तो फाइल्स आएंगी। जितनी ज्यादा आप एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज करना कम करोगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा एप्लीकेशंस का। जितनी कम एमबी की आपकी एप्लीकेशन होगी उतना ज्यादा उसका डाउनलोड बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है, बस केवल मेरे को सिखाना था, आप लोग सीख रहे हो, वेल एंड गुड, काफी अच्छा आप लोगों का परफॉर्मेंस है। आज स्क्रीन कौन शेयर करने वाला है मुझे ये बता दो, 13 हो चुके, फटाफट मैं वो बता देता हूँ। हेलो, कोई है? मैं करूँ सर? जी हाँ सर, बिल्कुल मैं करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एहसान सर आप मतलब सॉरी रुपेश सर, आपने लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड के दोनों लेआउट रेडी कर लिए या नहीं किए हैं अभी? जी सर, मैंने सबमिट कौन सी किया एक्टिविटी था, लैंडस्केप और थोड़ा पोर्ट्रेट इशू मोड था। लेआउट है अपने पास अभी? जैसे अभी कौन सी एक्टिविटी है, मतलब अपने पास लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड के लेआउट? एक्टिविटी 2 के है ना? जी सर शायद। एक्टिविटी 2 एक्टिविटी 2 है ना, दोनों है। यस सर। अच्छा आपने ऐसा बनाया तो आपको ना काफी ज्यादा ट्राई करने की नीड है, काफी ज्यादा जरूरत है आपको ट्राई करने की। जी सर। ठीक है, आपको मैं बताऊं
मैम का बात दिव्यांशी में देखा था आपने ये वाला लेआउट जो आपने बनाया अभी? यस सर देखा। जी सर देखा था। कार्ड बिल्कुल वैसे के वैसे ही, कोई चेंजेस नहीं है। 3 बोला था, 3 ला दिए उन्होंने, तो काफी अच्छा, मतलब देखने में बहुत बढ़िया था। ठीक है, तो वो है। अभी आप ना एक नई एक्टिविटी क्रिएट कर लो, अपन उसके लिए काम करेंगे पूरा। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड दोनों बनाने हैं उसमें, ठीक है। ये तो आपने कोड किया हुआ है, तो इस कोड को तो अपन छेड़ेंगे नहीं। मैन एक्टिविटी में दोनों बने हुए हैं, मतलब 5 में दोनों बने हुए हैं सर। 6 में सिर्फ ये है, पोर्ट्रेट है। 6 में सिर्फ पोर्ट्रेट मोड है। 5 यूज है क्या? 5 नहीं सर, 5 यूज केवल हेलो वर्ल्ड है ना? हेलो वर्ल्ड है ना? जी सर। हाँ, तो कोई इशू नहीं है, 5 का यूज ले लेते हैं अपन, है ना। यहाँ पे आप 2 बटन भी ले लो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो दोनों बटन को, बेटर हो जाएगा आपका, जल्दी काम हो जाएगा। कंस्टेंट कर देना और इनको एक और बटन ले लो। सेम चीज आप लैंडस्केप मोड पे भी कर दो। लैंडस्केप वाले लेआउट पे भी कर दो सेम। आईडी से अपने पास, हाँ, कॉपी पेस्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हो गया, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको रन करो। सॉरी, एक पहले प्रोग्राम बना लेते हैं अपन, पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं अपना, ठीक है। जी सर। इसको इनिशियलाइजेशन कर लो, एक्टिविटी 5 में, मैंने एक्टिविटी में 5 में इनिशियलाइजेशन कर लो इनका। between 2. अच्छा, ये किसी को नया तो नहीं लग रहा ना इनिशियलाइजेशन करना? नो सर। सर टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू की आईडी आएगी वहाँ पे, टेक्स्ट व्यू 1। और लैंडस्केप मोड पे भी चेक कर लेना, टेक्स्ट व्यू की आईडी सेम ही है ना, स्मॉल डी टेक्स्ट व्यू 1। लैंडस्केप मोड पे भी चेक कर लो, आईडी सेम ही है ना दोनों की, पोर्ट्रेट और लैंड। ठीक है। कंट्रोल डी दबा दिया करो, बटन और बटन 2 दो ही आईडी है। कंट्रोल डी, वहाँ यहाँ नहीं, बीटीएन पे, हाँ कंट्रोल डी। अरे ऊपर लो, कर्सर को ऊपर लो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ऊपर लो, हाँ कंट्रोल डी प्रेस करो, कंट्रोल प्लस डी, हाँ बस। अब आईडी और नेम चेंज करो, ठीक है। और मैनिफेस्ट फाइल में आ जाओ, मैनिफेस्ट फाइल सर यहाँ पे एक इशू है सर, वो चेंज करना पड़ेगा। हाँ नहीं मत करो, रहने दो, कोई इशू नहीं है। सर जब एक्टिविटी अरे कोई इशू नहीं है, अपन होगा ना,
हाँ अच्छा तो कोई इशू नहीं है, अपन डायरेक्ट उस 5 को ही रन करने वाले हैं अपन डायरेक्ट स्टार्टिंग में। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। इसको कोई इशू नहीं है, जैसा चाहो वैसा कर दो आप, पहले जैसा था वैसे। हाँ ये इंटेंट फिल्टर को हाँ कट करके, है ना, एक्टिविटी 5 वो स्लैश हटा करके और उसको टेक को क्लोज करो एक्टिविटी 5 में, हटा दो, हाँ स्लैश हटाओ, हाँ लेस देन का साइन दो, हाँ बस एंटर प्रेस करो, पेस्ट कर दो, बस अपने को और एक्टिविटी से मतलब ही नहीं है, रन करो। और एक्टिविटी 5 में है ना, जावा वाली क्लास में, एक्टिविटी मेन जावा 5, हाँ यहाँ पे अपन एक काउंटर भी चलाएंगे। तो यहाँ पे बटन की क्लिक पे एक काउंटर चलेगा, तो बटन पे क्लिक हैंडल करना है अपने को। तो क्या करते हैं क्लिक हैंडल करने के लिए अपन, सर बटन पे क्लिक लेना है, हो जाएगा। yes, ओके ऐसे ही बटन के ऊपर भी लेना है, नहीं हुआ सर, कंट्रोल डी से। सर पूरा सेलेक्ट करो, हाँ इस पूरे को सेलेक्ट कर, हो गया ना। या देखो बटन 1 में अपन जो करने वाले हैं वो होगा डिक्रीमेंट, एक मेथड बनाएंगे अपन डिक्रीमेंट वाला। ऐसा सर वही कल वाला चलेगा अपना जो भी चल रहा था, ठीक है। यस सर। डिक्रीमेंट लिखो, केवल डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। मुझे क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है क्या लिखा हुआ है ये, ब्रैकेट लगा, DECRE जी सर, MENT, हाँ सर, है ना, ब्रैकेट लगा दो, सेमीकोलन। हाँ अब इस मेथड को क्रिएट कर लो, नीचे वाला, अरे चलो इसको कट कॉपी पेस्ट कर लो, नीचे कट कर दो, हाँ एक्टिविटी में चाहिए, हाँ एक्टिविटी 5 में चाहिए, ठीक है। ऐसे इंक्रीमेंट वाला मेथड बनाओ दूसरे बटन पे, ठीक है। और एक वेरिएबल बनाओ इंटीजर का, जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0, ग्लोबल वेरिएबल होगा एक, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कहाँ बनाते हैं, मुझे सॉरी कहाँ टाइप कर रहे हो, मुझे कुछ विजिबल नहीं हो रहा एक्चुअली में। सर यहाँ पे स्क्रीन जूम हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हाँ। स्टूडियो में स्क्रीन जूम हो सकता है क्या? टेक्स्ट जूम करना है आपको, मतलब ये जो स्क्रीन, हाँ वही टेक्स्ट जो है उसे जूम करना है, हाँ तो हो सकता है उसके क्या? लिए ना आपको हो सकता है ना सर, फाइल्स में जाओ, फाइल्स में सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, फाइल में जाओ, फाइल्स नहीं है वहाँ पे, फाइल में सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, देखो है, जी सर। एंटर प्रेस करना। मुझे कुछ विजिबल नहीं हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे, मतलब आपका जो ये कर्सर बिल्कुल रुका हुआ है, शायद मेरा नेटवर्क इशू होगा आई थिंक। तो वहां पे आपको
एक एडिटर सेटिंग के नाम का ऑप्शन होगा, देखो एडिटर है, कुछ लिखा हुआ है एडिटर। सेटिंग्स पे सर क्लिक अभी करने के बाद आपको सर शायद कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। दिखाई दे सर रहा है क्या? फॉन्ट साइज होगा ना, मुझे कुछ हाँ भी नहीं सर, कुछ दिखाई दे रहा ज्यादा है है। एक्चुअली में। अच्छा, फॉन्ट साइज आप छोटा कर लो ना, एक कोई इशू नहीं है। एक मिनट सर, फॉन्ट बस साइज कनेक्ट कर रहा हूँ। रुक जाओ, मुझे मोबाइल से ज्वाइन करना तो फिर मुझे यहाँ से शायद प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को। या अब दिखाया। इतना साइज ठीक होगा ना सर? 16 दिया है। हाँ, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है। यहाँ का साइज इंक्रीज नहीं हुआ है, देखो नहीं हुआ ना। नहीं सर, बस वो साइड वाले का हुआ। फिर मैं वही तो बोला, आप फाइल में जाओ, एडिटर सेटिंग्स सॉरी, में होगा। मैंने आप यहाँ से भेज चेंज कर चेक दिया कर रहे हो, एक्चुअली। एडिटर लिखा हुआ है, एडिटर लिखा हुआ है, देखो वहाँ पे जी एडिटर में देखो जी फॉन्ट सर। भी लिखा हुआ है, फॉन्ट का ऑप्शन भी है एडिटर में, देखो है ना। यहाँ पे साइज दी हुई है, देखो जी साइज। अब यहाँ पे क्लिक करो, देखो इंक्रीज हो रही है। 18 कर दो साइज को, साइज 18 कर दो 18। उसके बाद आप। हाँ 18 कर दो, ठीक है। अप्लाई करो और ओके प्रेस कर दो। ठीक है सर। इंक्रीज हुआ थोड़ा साइज। हाँ सर। फिर बोल रहा हूँ यार, आप पता नहीं कहाँ जाते हो। मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए इसे मैं मतलब अंधेरे में ती चला रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एम का, हाँ चलो ठीक है, आई नाम का बना दिया ना आपने, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब वो नीचे दो मेथड बनाए ना आपने, उन पे आ जाओ। इंक्रीमेंट में तो आई प्लस प्लस कर दो और डिक्रीमेंट में आई माइनस माइनस कर दो, ठीक है। है ना। इंक्रीमेंट और ये वैल्यू जो इंक्रीमेंट होगा ना, उसको सेट कर दो टेक्स्ट के ऊपर, जो अपना टेक्स्ट बनता है ना, टेक्स्ट व्यूअर, उसके ऊपर सेट टेक्स्ट। पहले टेक्स्ट का नाम, नहीं सेट टेक्स्ट डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है, ऐसे भी नहीं, या डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पहले जो आई होगा ना, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा पहले। तो सर तो यहाँ ऐसा लिखें? नहीं, ऐसे भी नहीं, कन्वर्ट करना है अपने को। इंटीजर में ना, तो इसको कन्वर्ट पढ़ा होगा ना आपने, टाइप कास्टिंग, वो टाइप को चेंज करने वाला, इंटीजर को स्ट्रिंग में वगैरह जावा में पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा? चलो ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटा दो, हटा दो, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। लिखो कैपिटल एस, कैपिटल एस, एस नॉट एफ, एस, सेट वाला एस, कैपिटल एस, हाँ एस स्ट्रिंग। एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस करो, डॉट वैल्यू ऑफ। देखो आपको वैल्यू ऑफ में कितने सारे मेथड्स दे रहे हैं, आप चेंज कर सकते हो वैल्यूज इतने सारे। ये मैं उस दिन था, यहाँ पे आई पास कर दो उसके, ठीक है। हाँ, तो ये यही सेम कॉपी पेस्ट करके इंक्रीमेंट वाले में भी डाल देना। अब रन करो,
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बटन पे चेक करना प्रेस करके। चल रहा है ना? अब इसको लैंडस्केप मोड हो रहा है सर। हाँ सर। पे करो। अरे कर रहे हो क्या, कर रहे हो क्या? कर रहे हो इतना क्यों क्लिक कर रहे हो? 5 पे लेके जाओ, बस इंक्रीमेंट करो 5 पे, बटन 2 पे, बटन 2 को प्रेस करो, 5 तक लेके जाओ, फिर उसको लैंडस्केप मोड पे डालना। मुझे कुछ विजिबल नहीं हो रहा है एक्चुअली। हाँ केवल पोर्ट। ये देखो, दिख रहा है मतलब दिख रहा है आप लोगों को ये वैल्यू चेंज हो रही है बार बार। स्टार्टिंग से वही वर्ड आ रहा है जो इनिशियल वैल्यू है ना? तो अब अपन इनको स्टेबल करेंगे अपन वैल्यूज को, ठीक है? तो उसके लिए अपन 2 मेथड का यूज लेते हैं यहाँ पे। करो, नीचे आओ, हाँ कोडिंग में डिक्रीमेंट के नीचे आओ, डिक्रीमेंट जो मेथड बनाया ना उसके नीचे आ जाओ, उसके एंटर प्रेस करके सेव लिखो, सेव SAVE, सेव, बस फर्स्ट सेकंड मेथड एंटर प्रेस कर दो उसको, ठीक है? हाँ, तो अब इस मेथड में क्या होता है, ये मेथड आपको यहाँ पे जो बंडल क्लास है ना, जो पोर्ट्रेट मोड पे जो वैल्यू होगी, जो पोर्ट्रेट मोड पे वैल्यू होगी वो अपन बंडल क्लास में स्टोर करवा देंगे, और फिर वही वैल्यू अपन जब लैंडस्केप मोड पे वैल्यू को लेके जाएंगे, लैंडस्केप मोड पे अपने डिवाइस को लेके जाएंगे, तो वहां पे बंडल क्लास की मदद से वो वैल्यू वहां पे पास करा देंगे, ताकि वो वैल्यू वहां पे दिख जाए अपने को, जो पोर्ट्रेट मोड में वैल्यू थी, ठीक है? ठीक है, इस मेथड का यही यूज होता है बंडल क्लास का, ठीक है? एंटर करके प्रेस कर दो नीचे, एंटर करके नीचे आओ, ठीक है? अब यहाँ पे अपने को जो काम करना है वो करना है, आउट स्टेट नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है बंडल क्लास का, एंटर प्रेस करो, डॉट पुट इंटीजर, स्ट्रिंग नहीं इंटीजर, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं अपन, बट अब अभी इंटीजर पे काम करें। तो ये आपसे 2 वैल्यू लेता है, फर्स्ट की और सेकंड वैल्यू। वैल्यू अपने को कहां से मिलेगी? आई से मिलेगी वैल्यू, ठीक है? और की अपन देंगे, जो की हमेशा दी जाती है वो स्ट्रिंग में दी जाती है, डबल कोट्स के अंदर। तो पहले की देंगे डबल कोट्स के अंदर, की K1 दे देते हैं अपन अभी फिलहाल, फॉर एग्जांपल के लिए K1, ठीक है? कोमा लगाओ और वैल्यू अपन पास करेंगे आई, ठीक है? अब अपनी जो आई की जो भी वैल्यू होगी, जहां जितना भी इंक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट होगा, जहां तक भी आई की वैल्यू बढ़ेगी, वो वैल्यू सीधी आकर के यहाँ पे मेथड कौन सा होता है वो, हाँ सर। सर वॉइस थोड़ा ग्लिच हो रहा है, ये मतलब मेरा नेट स्लो है या आपका स्लो है? हेलो, किसी और को प्रॉपर वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं सर, ब्रेक हो रहा था आपकी वॉइस। अच्छा, ब्रेक हो रही है। अभी? जी सर, अभी आ रही है। हाँ, तो देखो, सेव स्टेट ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट, ये मेथड आपको एक बंडल क्लास का वेरिएबल देता है, जिसकी मदद से आप जो भी वैल्यू पोर्ट्रेट मोड पे है उस वैल्यू को आप स्टोर करोगे बंडल क्लास के अंदर, ठीक है? और फिर उसी वैल्यू को रीस्टोर नाम का एक मेथड होता है, एंटर कर नीचे आना, इस मेथड के बाहर आना, बिल्कुल मेथड के बाहर आ जाओ, हाँ यहाँ पे लिखो रीस्टोर, रीस्टोर, हाँ रीस्टोर इंस्टेंस। यहाँ पे भी देखो आपको एक मेथड
बंडल क्लास का ही एक दूसरा वेरिएबल मिलता है, सेव इंस्टेंस स्टेट का। हेलो सर। हेलो हाँ मैम। हाँ मैम। सर, आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा अभी क्लियर हो रही है? है। वेट अ नहीं मिनट, सर। मैं नेटवर्क चेंज, हाँ मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। लैपटॉप चार्ज हो रहा है। हेलो, अभी वॉइस क्लियर है? यस हेलो, सर। अभी क्लियर है ना? हाँ चलो ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था, सेव स्टेट, सेव इंस्टेंट स्टेट, सर इसमें जो अभी भी बंडल नहीं क्लास, है, अभी पहले से तब तो और वो हो गए। अभी और खराब हो गई। यस सर। अरे यार। सर क्लियर आ रही है, मतलब मुझे तो आ रही क्लियर। सर सर ठीक वॉइस है आपकी सर शायद क्लियर है। नीलम ठीक मैम, है सर। आपका हाँ नेटवर्क चेक करोगे प्लीज? हेलो नीलम मैम, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही एक्चुअली में अभी। नीलम मैम। सर शायद उसी की नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ मैम, मैं अपना नेटवर्क चेंज कर लिया हूँ क्योंकि, हाँ तो मैं ये बोल रहा था, देखो सेव ऑन सेव इंस्टेंट स्टेट, इस मेथड में जो बंडल क्लास हमें प्रोवाइड, बंडल क्लास का जो वेरिएबल प्रोवाइड होता है उसमें अपन किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। देन उसी को जो पोर्ट्रेट मोड पे, मतलब ऐसा नहीं कि अपन सेव स्टेट इंस्टेंट मेथड का अपन पोर्ट्रेट मोड पे ही यूज ले रहे हैं या लैंडस्केप मोड पे ही यूज ले रहे हैं, जो भी जहां पे भी आपको वैल्यू को स्टोर करना हो आप यूज ले सकते हो, ठीक है। जहां पे भी लैंडस्केप या डार्क मोड या कहीं पे भी यूज लेना हो, बेसिकली हर एक चीज पे आप, बेसिकली जनरली जो यूज लेते हैं इसको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड के लिए ही यूज लिया जाता है बेसिकली इसको, ठीक है। तो वही है, ठीक है। तो रिस्टोर इंस्टेंस स्टेट, ये आपको बंडल क्लास का सेव इंस्टेंस स्टेट नाम का एक वेरिएबल देता है, ताकि जो भी वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर करते हो सेव इंस्टेंस स्टेट के अंदर, बंडल क्लास के वेरिएबल में जो भी वैल्यू आप स्टोर करोगे वो यहाँ से आपको जिस भी मोड में दिखानी हो आप दिखा सकते हो, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या जहां पे भी दिखानी हो एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेव इंस्टेंस स्टेट वेरिएबल का यूज लोगे। सर टाइप करेंगे सेव इंस्टेंस स्टेट डॉट गेट, हाँ फर्स्ट वाला ही, ठीक है। एंटर प्रेस कर दो। ये आपसे एक की मांगता है, स्ट्रिंग की, जो अपन ने वहां पे पास की है ना K1, वो यहाँ पे अपन पास कर देंगे, बिल्कुल K1 को अपन यहाँ पे पास कर देंगे। देन अब अपन जब रन करते हैं तो देखना क्या होता है। रन करो सर। रीस्टार्ट करो दोबारा से, सही से वो हुआ नहीं हो शायद इम्प्लीमेंट, यही प्रॉब्लम चल रही है। उस दिन भी अपन ने जब उसका किया था तब भी वही दिक्कत आई थी। अगर ये नहीं चला तो फिर मुझे खुद को दोबारा चेक करना पड़ेगा कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस करता नहीं चीज़ों की, डायरेक्ट ही बोलने लग जाता हूँ।
सॉरी नहीं हुआ फिर भी। प्लस में करना, प्लस वाले में देखना, इंक्रीमेंट करो, अभी करो चेंज, देखें कोड वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर, है ना? जी सर। हाँ तो मैं इसको देखूंगा एक बार दोबारा से कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। ऐसी आनी नहीं चाहिए थी ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इस चीज़ को अप्लाई किया हूँ अच्छे से, अपने प्रोजेक्ट्स में ही अप्लाई किया था, तब वर्क कर रहा था अच्छे से। तो मैं दोबारा इसको देखूंगा अच्छे से क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको कमेंट करना, ऑन रिस्टोर इंस्टेंस स्टेट वाले मेथड को कमेंट कर दो, इसको कमेंट कर दो। यही वेरी नहीं नहीं उसको नहीं, उसको नहीं, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले मेथड को, केवल नीचे वाले मेथड को। उसी वैल्यू को वापस लेना। वैल्यू एज इन सर क्या? सॉरी सॉरी, इसी मेथड को दोबारा वो करना आप उसको, मतलब अभी रन अनकमेंट करना, अनकमेंट करना इसको, इसी को अनकमेंट करना दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे एक गलती थी, मुझे शायद अभी ध्यान आया है गलती क्या थी। एंटर करके प्रेस करो। ठीक है, और सर इस सेव इंस्टेंस स्टेट को यहाँ पे लिखो, जे नाम का एक वेरिएबल बना लो इसके आगे, जस्ट इसके आगे, सेव इंस्टेंस स्टेट के आगे, बिल्कुल आगे आगे। जे नहीं, जे के इक्वल में लेना है, ये जे के इक्वल में लेना है अपने को, ये पूरा जे इक्वल, बस इंटीजर नाम का इंटीजर वेरिएबल बना लो इसको, इंट ing। ठीक है, क्या क्या एरर दे रहा है ये, एरर दे रहा है, चलो ठीक है, इसको आई में कर दो, रहने दो, इसको आई के इक्वल कर दो, फिर जो अपना ऊपर आई बना हुआ है ना उसके इक्वल कर दो केवल। सर इंट जे के बदले में आई जे को हाँ केवल आई, इंट जे हटा करके आई लिख दो केवल वहां पे, बस आई, इंट हटा दो, इंट को हटा दो, इंट को हटा दो आगे से, इंट को हटा दो। अभी क्या एरर दे रहा है, अभी भी एरर दे रहा है। अच्छा रुक जाओ, फिर रुक जाओ, यहाँ पे गेट इंट का यूज ले लो, गेट का अपन मेथड, गेट का यूज लेना, गेट इंट का यूज ले लो इसकी जगह पे, गेट की जगह पे, गेट हाँ गेट इंट INT, हाँ बस ठीक है, अब सही है, अब एरर चलेगा। ठीक है, अब एंटर करके नीचे आ जाओ, एंटर सेमीकोलन के बाद एंटर करना, सेमीकोलन के बाद, हाँ एंटर करके नीचे आ जाओ। अब इस वैल्यू को अपन टेक्स्ट व्यू में सेट भी तो करना है, वो तो किया ही नहीं था अपन ने। ठीक है, वो गलती होगी थी अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू जो ऊपर आपने लिखा है ना टेक्स्ट, उसको कॉपी पेस्ट कर दो, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, वो पूरा कॉपी पेस्ट कर दो नीचे की साइड, इसको कॉपी करके और नीचे पेस्ट कर दो, बस। अब रन करो, अब देखते हैं अभी प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है। अभी नहीं आई प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम है अभी? अच्छा हो मुझे भी हैंड टू हैंड याद आ गया, मैं भूल गया था नहीं तो। ठीक है, तो एक ये अच्छा सा तरीका है। दूसरा, इसको पूरे को कमेंट आउट कर दो। एक और तरीका मैं बताता हूँ, इस मेथड का आपको याद ना रहे तो भी अपन बता देते हैं। ठीक है, इसको कमेंट आउट कर दो बस, केवल इस मेथड को, और केवल इसी मेथड को, इसी एक ही मेथड को करना है। सर पूरा क्यों कमेंट आउट करने जाते हो आप? ओके, अब ऊपर आ जाओ। ठीक है, तो ऑन क्रिएट मेथड में अपन आ गए। ठीक है, बटन के जस्ट नीचे आ जाओ, बटन क्लिक के नीचे, बटन 2 के जो नीचे क्लिक है, बटन 2 का जो क्लिक है उसके नीचे आ जाओ बस, उसके नीचे, हाँ सेमीकोलन लगा है उसके नीचे, एंटर। ठीक है, यहाँ पे अपन एक कंडीशन लगा सकते हैं, क्योंकि अपने को ऑन क्रिएट में भी देखो सेव इंस्टेंस स्टेट का वेरिएबल मिलता है ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। देखो चेक करो है कि नहीं है,
चेक करो, ऊपर ऊपर जाना सर, ये देखो सेव इंस्टेंस स्टेट, ये वेरिएबल अपने को यहाँ पे भी मिलता है, तो अपन इसका भी यूज ले सकते हैं चाहे तो इफ कंडीशन लगाएंगे अपन नीचे, एंटर करके नीचे आ जाओ, इफ कंडीशन अपन यहाँ पे लगाते हैं, एंटर प्रेस करो, हाँ यहाँ पे लिखो सेव इंस्टेंस स्टेट नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, या कर्ली ब्रैकेट्स, एंटर, ठीक है। हाँ, अब वो जो काम अपन ने उसमें किया था ना रिस्टोर वाले में, वो काम अपन यही करना है, बस उसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दो या कॉपी पेस्ट कर दो सीधा नीचे वाला, ये आई वाला जो था, आई वाला, बस ये 2 लाइन कॉपी करो और ऊपर पेस्ट कर दो, नीचे नीचे नीचे, हाँ यहाँ पे पेस्ट कर दो, बस अब रन कर दो। अभी देखना वही काम जो उसमें हो रहा था वही काम यहाँ पे भी होगा। सी, जो काम अपन उस मेथड में कर पा रहे थे वही काम अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो आप जैसा आपको सही लगे ना, दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं यहाँ पे आज। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? नीलम मैम, सॉरी उमंग मैम, रूपाली मैम, दिव्यांशी, शिखर सर, एहसान सर। नो सर। नो समझ में आया सर? नो सर, कोई डाउट नहीं। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो अभी एहसान सर आप समझा सकते हो ना? अगर कल मैं बोलूं तो समझा दोगे ना फिर आप? हाँ सर, समझा दूंगा, ट्राई कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई नहीं, पूरा 100% देना है अपने को, ठीक है। तो अब ना आप लोगों का असाइनमेंट यही होगा, आज का असाइनमेंट यही है कि आपको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड पे जो आपने लेआउट बनाया ना, कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है आपको जो आपको वैल्यू को स्टोर कर सके, मतलब वैल्यू को आपको स्टेबल करवाना है। चाहो तो आप यही प्रोग्राम बना लो काउंटर का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट ए प्रोग्राम काउंटर काउंटर का प्रोग्राम के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड पे शो करना है अपने को काउंटर, ठीक है। हेलो, ओके सर। तो यही प्रोग्राम बना देना आप लोग अच्छे से और प्रैक्टिस करना है इस चीज की। तो आप लोग लीव कर सकते हो अभी, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर। सर आपको कोई डाउट हो रुपेश सर आपसे, क्योंकि अभी तक सर्कल नहीं बन रहा है। सर सर 1 मिनट बस देख लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, और कौन बोला था, किसको डाउट है? सर आज का टास्क किसी की वॉइस आई थी मुझे, मैम वही तो बताया। हेलो मैम, मैं वही तो बताया था, आज का टास्क ही तो बताया था मैं आपको, मतलब कि आपको ना वो करना है, मतलब जो आज पढ़ाया है ना वही वर्क करना है, वही टास्क है आपका। काउंटर चलाना है अपने को अच्छे से, और काउंटर पे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड पे वैल्यू को चेक करना है कि वैल्यू स्टेबल है, मतलब स्टेबल है या नहीं है, वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही है ना बार बार। ओके सर। सर हाँ सर। सर मैंने यहाँ पे रेडियस कम ही रखा था, इसीलिए वो मतलब थोड़ा सिलेंडर टाइप हो रहा है, पर ये मैंने मतलब डिजाइन के लिए ही किया था, मतलब ज्यादा कुछ खास डिजाइन तो है नहीं, पर इसी को ही किया था बस। अगर मैं रेडियस बढ़ा दूंगा तो ये पहले तो सर